Hello and welcome to 12th Commerce Accountancy. In NPO, we are going to see the next question, sum number 9 from your NCERT book exercise. Okay, so we are preparing first of all the income and expenditure account from that account. Okay, some additional information also are given in the table you can see in your book. Okay, so now we will start the question. First of all, we will record on the income side. Okay, and from income side, if we want to record, then we have to see on the receipt side in the receipt and payment account. So, what is given there? Subscription. Okay, subscription we have to record here. First of all, how much it is? That is 60,200. 60,200. Okay, now, the additional information is given to you. Subscription receipt in advance. There are two dates: 1st April 2014 and 31st March 2015. Now I have told you that what to add, what and what to less. जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो माइनस करना है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्लस करना है. सेम इज if the advance receipt of previous year, then it add it, and if there is advance receipt of current year, then less it. चलो ऐसा करते हैं. Okay, so first of all we will add advance receipt of previous year 2014 year. Okay, and that is 1000. Okay, फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर यानी कि 2015 ईयर का आउटस्टैंडिंग दैट इज 3700. ओके, चलो भाई कितना होता है ये 964 ओके, माइनस अभी माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे? इससे उल्टा यानी कि एडवांस रिसीव. अभी जो 2015 का है वो माइनस करो. 2015 का क्या है? 3200 है. ओके, और आउटस्टैंडिंग है 2014 का यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दैट इज 2000 रुपीज. ओके, चलो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 59,700 रुपीज will be the total of subscription. The next, donation. Okay, we will record it. Donation. Donation how much? 3,000 rupees. Then sale of furniture. Yes, sale of furniture whenever it is given we have to take the difference amount. The book value is 6,000. The main amount is 4,000. The sale value is 4,000. So there is difference of 2,000. Now the book value is greater, so there is a loss. Okay, so loss यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर साइड. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज 2000. ओके, चलो ये भी हो गया. एंट्रेंस फी वी हैव टू रिकॉर्ड हियर. एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी हाउ मच? 800 रुपीज इट इज. ये भी हो गया. लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट सो इट विल नॉट कम. ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इट विल कम. Interest on investment 5,000. Now you can see there is bracket. In bracket 5% full year ऐसा दिया गया. ठीक है, so there is an adjustment. There is an hidden adjustment that we have to see. We can find the investment amount from that amount, from that percentage given. Okay, and the interest amount is given. How to find that we will see in the balance sheet, because investment will come in balance sheet, not in income and expenditure account. Okay, so this is all about the receipt side, income side. Now we'll see on the expenditure side. So whatever the given in on payment side we will record here. Okay, on payment side what is given? Salaries, yes, directly in the outer column because there is no adjustment. 24,000. Okay, traveling expenses. Traveling expense how much it is? 6,000. Stationery. Now there is opening stock of stationery and closing stock of stationery. So we have to find the material consumed of stationery that I have told you. Opening plus purchase minus closing. This formula we have to follow. Yes. So stationery. Okay. First of all, opening stock. How much opening stock? Opening stock is 1,200. Okay. प्लस करेंगे उसमें परचेज. जो हमें पेमेंट साइड दिया है वो परचेज है 2,300. इट्स द परचेज एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक.
how much the closing stock is? Closing stock is 800 rupees. Okay, so in outer column 2700 is the stationery consume. इतनी stationery consume हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट है, रेंट पे एक एडजस्टमेंट है। सो 16,000 इनर कॉलम में आएगा, इट विल कम इन इनर कॉलम। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट टू डेट, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। जैसे सब्सक्रिप्शन में करते हैं वैसे इसमें करना है। प्रीवियस ईयर का माइनस करो, करंट ईयर का प्लस करो, ठीक है। सो प्लस 2015 ईयर, ओके, दैट इज 2000 एंड माइनस 2014 ईयर का माइनस करो, वो कितना है? 1000 है। चलो ये माइनस कर दिया, आउटर कॉलम में आ गया 17,000 रुपये, ये 17,000। चलो हो गया। नेक्स्ट रिपेयर, repair 700 rupees. Okay, 700 rupees it will come. Now books purchase is given to you. Okay, now books will not come here because it's an asset, but the depreciation will come. Now any percentage is not given, so how we can calculate the depreciation? I'll tell you. I'll do the calculation here. Look, the opening stock of book is given to you. Opening stock, how much it is? 13,500. okay, प्लस परचेस, बुक्स परचेस कितनी है भाई? 6,000 है, प्लस करो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बुक्स कितनी है? 16,500 है, 16,500। ओके, तो 13 और 6 यानी 19,500, उसमें से 16,500 माइनस किए तो डिफरेंस कितना आएगा? 3,000। नाउ व्हाट इज द 3,000? इट इज द डेप्रिसिएशन। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन बुक्स, और इसका डिप्रिसिएशन कितना है? 3,000 है। चलो वैसे ही हम फर्नीचर का भी करेंगे, ठीक है। फर्नीचर हमें दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो फर्नीचर जो है वो कितना है? 16,000 ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अभी परचेस फर्नीचर ऐसा कुछ नहीं दिया पेमेंट साइड, लेकिन रिसीट साइड देखो, सेल ऑफ फर्नीचर दिया है आपको, ठीक है। उसमें से हमें बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू कितनी है? 6,000। अभी सेल हो गया तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस सेल 6,000, तो बचा कितना? 10,000 का फर्नीचर बचा ना। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है आपको? क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 8,000। So the difference amount is depreciation for this furniture. 2,000 is the depreciation for furniture. Okay, so you can find it like that. Furniture here, okay, that is 2,000 rupees, and 3 plus 2 that would be 5,000. चलो ये हो गया depreciation. Okay, क्लियर है, क्योंकि ये तो एक सारे सिर्फ कैलकुलेशन थी इसलिए। चलो, so this is all about the depreciation. अभी दूसरा कुछ है, बिल्डिंग परचेज नहीं आएगा, वो एसेट है। कैश इन हैंड भी नहीं आएगा, सब कुछ हो गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओके, स्टॉप, चलो सब कुछ आ गया, ऑल थिंग्स आर डन। टोटल करते हैं, टोटल इसका आता है 68,500 रुपीज। ओके, यहाँ पे भी 68,500 रुपीज। अभी इसमें से टोटल खर्चा माइनस करोगे तो आएगा डिफरेंस 11,100। दैट इज द सरप्लस अमाउंट। ओके, so this is the surplus. Okay, write it and pause me, and after that we will see the opening and closing balance. Welcome back. Now we will see the opening balance sheet because we want to find the opening capital fund. Okay, we have calculated the surplus amount. Now we will see the opening capital. Okay, और उसके लिए हमें क्या लेना है? सिर्फ ओपनिंग फंड, ओपनिंग जो भी दिया है वो ओपनिंग ही लेना है, यानी कि प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का कुछ नहीं लेना। सो फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या लेना है? मैंने आपको बताया है, फ्रॉम रिसीट साइड ओनली एंड ओनली कैश वी हैव टू टेक। ओके, सो कैश इन हैंड इज 6,800 रुपीज दी ओपनिंग। ओके, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश 6,800 रुपीज। ओके, चलो भाई बाकी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस, एडवांस है तो लायबिलिटी है। एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना है? वही 1,000 है।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014 का ही देखना, 2015 का मत देखना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा, एसेट है वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो भी 2000 है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, चलो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओके, इट इज 1200, ठीक है। देन बुक्स, वो भी ओपनिंग ही लेनी है हमें। बुक्स कितनी है भाई, 13,500 रुपीज, चलो वो भी लिख दिया। फर्नीचर कितना है वहाँ पे, 16,000 रुपीज, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज एन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सो इट्स अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी वो कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है, 1,000 रुपीज, ओके। चलो ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज बाकी है, क्या है, इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ओके। कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट, आपको क्या दिया है, 5,000 रुपीज दिया है इंटरेस्ट, ओके, और परसेंटेज भी दिया आपको, 5%। तो क्या करना है अगर इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है, तो ये 5,000 लेना है, मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज। अगर फाइंड करता है तो 100 डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं, हमें मेन अमाउंट फाइंड करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज से डिवाइड करना है, ओके। तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट की अमाउंट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, एंड दैट इज 1,00,000 रुपीज, ओके। और इसका अगर हम टोटल लगाते हैं तो ये आएगा 139,500, 1,39,500, 1,39,500, ओके, 1,39,500। अभी 1 + 1 2,000, ये माइनस होगा, सो होगा 137,500, ओके। ये क्या हुआ, इट इज कैपिटल फंड ऑफ 31st December 2014। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट बैलेंस शीट, ओके। चलो ये भी लिख लो, पॉज कर दो मुझे, ओके। So we have seen the income and expenditure, we have seen the opening balance sheet, now we'll see the closing balance sheet, यानी कि final balance sheet we are going to prepare now, okay। क्या हमें रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग बैलेंस जो पेमेंट साइड दी है आपको, ठीक है, कैश इन हैंड ऑन क्लोजिंग पेमेंट साइड which is 1800 that you have to record here, okay। दूसरा क्या रिकॉर्ड करना है, यस, एडवांस रिसीव जो है वो लायबिलिटी है, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी इसको हम थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि ऊपर कैपिटल फंड आएगा, ठीक है। एडवांस रिसीव सब्सक्रिप्शन, अभी वो करंट ईयर का लेना है, ठीक है, 3,200 रुपीज, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द करंट ईयर। अभी यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी करंट ईयर का आएगा, एंड दैट इज 3,700, ओके, 3,700। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग जो है वो लेना है हमें 800 रुपीज, ठीक है। चलो बुक्स में क्या करना है, तो बुक्स में ओपनिंग भी लेना है और क्लोजिंग भी लेना है। ओपनिंग 13,500, ओके, उसमें परचेस प्लस करना है, परचेस ऑफ बुक्स वो में प्लस करना है। परचेस कितना दिया है, 6,000 दिया है, ठीक है, 6,000, और माइनस डेप्रिसिएशन, ओके, माइनस डेप्रिसिएशन कितना होगा, हमने डेप्रिसिएशन फाइंड किया ही है ना, डेप्रिसिएशन 3,000 रुपीज, तो कितना होगा यहाँ पे, यस इट इज 16,500 रुपीज, ओके। ये जो क्लोजिंग है वो आउटर कॉलम में डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। वैसे ही फर्नीचर का है, फर्नीचर में ओपनिंग जो है वो 16,000 है, ठीक है, माइनस सेल्स कितने का हुआ है, 6,000 का सेल्स हुआ है, वो माइनस करना है, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, डेप्रिसिएशन में देखो फाइंड किया 2,000 रुपीज, ओके। सो आउटर कॉलम में कितना लिखना है, 8,000 रुपीज, हो गए भी। चलो आउटस्टैंडिंग रेंट,
लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, कितना आएगा 2000 रुपीज। चलो ये भी हो गया, यानी सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आगे आ चुके हैं। पेमेंट साथ देख लेते हैं क्या बाकी है, इन्वेस्टमेंट बाकी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट इज 1 लाख रुपीज। जो अमाउंट 1 लाख हमने वहाँ पे लिखी थी वो अमाउंट वापस यहाँ पे लिखनी है। एक और चीज़ है बिल्डिंग परचेज, वो भी हमें लिखनी है। ओके, बिल्डिंग कितने की है, 30,000 की है, तो 30,000 लिख दिया हमने। चलो फिर यहाँ पे आएगा कैपिटल फंड, जो हमने फाइंड किया था 137,500, उसमें हमें प्लस करना है सरप्लस। सरप्लस है 11,100। ओके, दूसरा में रिसीट साइड दिया कि भाई कैपिटल रिसीट कोई है क्या, सर है ना, लाइफ मेंबरशिप फीस है। ओके, तो वो भी इसमें प्लस करो, लाइफ मेंबरशिप फीस LMF, वो कितनी है 7,000 है। चलो भाई सर इसको भी प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होता है 1,55,600। ओके, चलो अभी कुछ बाकी नहीं है, बाकी का सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया है, ऑल द थिंग्स वी हैव रिकॉर्डेड। तो अभी टोटल कितना होता है इसका 1,60,800। ओके, this is also 1,60,800. Check it now, okay, if you want. Okay, so this is the final balance sheet of yours and this is the completion of this question. Okay, repeat कर लेना and thank you very much. Okay, bye, see you.